کیا کروں. لیکن پانی میں اس جملے پہ آ کے میں اٹک گئی. یہ لائن سر تھوڑی آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے یا اسی کے کوچے میں کئی اس کی شناخت. کہتا یہ کرتا میں یہی ہوں. میرے ساتھ کے گھر ایک مرزا صاحب رہتے ہیں. خدا کے فضل سے 6 بچوں کے والد ہیں. بڑے بچے کی عمر 9 سال ہے. بہت ہی شریف آدمی ہیں اور ان کے بیچارے بچے بہت ہی بے زبان ہیں. جب ان میں سے کوئی ایک روتا ہے باقی سب چپ کے بیٹھے سنتے رہتے ہیں. جب وہ روتے روتے تھک جاتا ہے تو دوسرا بدخوردار شروع ہو جاتا ہے. جب وہ ہار جاتا ہے تو تیسرے کی باری آتی ہے. رات کی ڈیوٹی دینے والے بچے الگ ہیں. ان کا سر ذرا باریک ہے. آپ انگلیاں چٹخوا کر سر کی کھال میں تیل جسوا کر کانوں میں روئی دے کر لحاف میں سر لپیٹ کر سوئیں. ایک لمحے کے اندر آپ کو جگا کر اٹھا کر بٹھا نہ دیں تو میرا ذمہ. انہی مرزا صاحب کے گھر جب میں جاتی ہوں تو ایک ایک بچے کو بلا کر پیار کرتی ہوں. اب آپ ہی بتائیے کیا کروں. کئی دفعہ دل میں خیال آیا مرزا صاحب سے کہہ دوں حضرات آپ کے ان نغمہ سرائیوں نے میری زندگی حرام کر دی ہے. نہ دن میں کام کر سکتی ہوں نہ رات میں سو سکتی ہوں. یہ میں کہنے ہی کو ہوتی ہوں کہ ان کا ایک بچہ کمرے میں آ جاتا ہے اور مرزا صاحب والدانہ تبسم سے کہتے ہیں اختر بیٹا سلام کرو. سلام کرو بیٹا. صاحب ان کا نام اختر ہے. بڑا اچھا بیٹا ہے. نہ تنگ کرتا ہے نہ روتا ہے نہ ماں کو دک کرتا ہے. لیکن میں اچھے سے جانتی ہوں یہ وہی نالائق ہے جو رات کو 2 بجے گلا پھاڑ کر روتا ہے. مرزا صاحب تو قبلہ شاید مرزا صاحب تو قبلہ شاید اپنے زوروں خراٹوں کے شور میں کچھ نہیں سنتے. بدبختی ہماری ہوتی ہے. لیکن پھر بھی کہتی یہی ہوں ادھر آؤ بیٹا اور گھٹنے پر بٹھا کر پیار کرتی ہوں. خدا جانے آج کل کے بچے کس قسم کے بچے ہیں. ہمیں اچھی طرح یاد ہے ہم بقرعید پر تھوڑا سا رو لیا کرتے تھے اور کبھی کبھار کوئی مہمان آ نکلے تو نمونے کے طور پر تھوڑی سی ضد کر لی. ایسے موقع پر ضد کارآمد ہوا کرتی تھی. لیکن یہ متواتر 24 گھنٹے روتے رہنا ایسی مشق ہم نے کبھی باہم نہ پہنچائی تھی. میرے ساتھ کے گھر ایک مرزا صاحب رہتے ہیں. خدا کے فضل سے 6 بچوں کے والد ہیں. بڑے بچے کی عمر 9 سال ہے. بہت شریف آدمی ہیں. ان کے بچے بھی بیچارے بہت ہی بے زبان ہیں. جب ان میں سے ایک روتا ہے تو باقی سب چپ کے بھیڑے سنتے رہتے ہیں. جب وہ روتے روتے تھک جاتا ہے تو دوسرا برخوردار شروع ہو جاتا ہے. جب وہ ہار جاتا ہے تیسرے کی باری آتی ہے. رات کی ڈیوٹی والے بچے ذرا الگ ہیں. ان کا سر ذرا باریک ہے. آپ انگلیاں چٹکوا کر سر کی کھال میں تیل جھسوا کر کانوں میں روئی دے کر لحاف میں سر لپیٹ کے سوئی. ایک لمحے کے اندر آپ کو جگا کے اٹھا کے بٹھا نہ دیں تو میرا ذمہ. انہیں مرزا صاحب کے گھر جب میں جاتا ہوں تو ایک ایک بچے کو بلا کے پیار کرتا ہوں. اب آپ ہی بتائیے کہ میں کیا کروں. کئی دفعہ دل میں آیا کہ مرزا صاحب سے کہوں حضرت آپ کے نغمہ سرائیوں نے میری زندگی حرام کر دی ہے. نہ دن کو کام کر سکتا ہوں نہ رات کو سو سکتا ہوں. لیکن یہ میں کہنے ہی کو ہوتا ہوں کہ ان کا ایک بچہ کمرے میں آ جاتا ہے. اور مرزا صاحب ایک والدانہ تبسم سے کہتے ہیں اختر بیٹا
सलाम करो बेटा। इनका नाम अख्तर है साहब, बड़ा अच्छा बेटा है, कभी ज़िद नहीं करता, कभी नहीं रोता, कभी माँ को दक नहीं करता। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये वही नालायक है जो रात के 2 बजे गला फाड़ के रो रहा होता है। लेकिन मिर्ज़ा साहब तो किबला अपने कराटों के ज़ोरों शोरों में कुछ नहीं सुनते, बदबख्ती तो हमारी होती है। लेकिन कहता यही हूँ कि यहाँ आओ बेटा, और घुटने पे बिठा के उसका मुंह भी चूमता हूँ। खुदा जाने आजकल के बच्चे किस किस्म के बच्चे हैं। हमें अच्छी तरह याद है कि बकरीद को थोड़ा सा रो लिया करते थे, और कभी कभार कोई मेहमान आ निकला तो नमूने के तौर पे थोड़ी सी ज़िद कर ली, क्योंकि ऐसे मौक़ों पे ज़िद करामत हुआ करती थी। लेकिन ये कि 24 घंटे मुतवातिर रोते रहें, ऐसी मश्क हमने कभी भाम ना पहुँचाई। मेरे साथ के घर एक मिर्ज़ा साहब रहते हैं, खुदा की फजल से 6 बच्चों के वालिद। बड़े बच्चे की उम्र 9 साल है, बहुत शरीफ आदमी हैं। उनके बच्चे भी बेचारे बहुत ही बेज़ुबान हैं। जब उनमें से एक रोता है तो बाकी सब चुप के बैठे सुनते रहते हैं। जब वो रोते रोते थक जाता है तो दूसरा बार खुरदार शुरू हो जाता है, और जब वो हार जाता है तो तीसरे की बारी आती है। रात की ड्यूटी वाले बच्चे अलग हैं, उनका सुर ज़रा बारीक है। आप उंगलियां चटकवा कर, सर की खाल में तेल झुसवा कर, कानों में रुई देकर, लिहाफ में सर लपेट कर सोएं। एक लम्हे के अंदर आपको जगा के उठा के बिठा न दें तो मेरा ज़िम्मा। इन्हीं मिर्ज़ा साहब के घर जब मैं जाती हूँ तो एक एक बच्चे को बुलाकर प्यार करती हूँ। अब आप ही बताइए कि अब मैं क्या करूँ। मेरे साथ के घर एक मिर्ज़ा साहिब रहते हैं, खुदा के फजल से 6 बच्चों के वालिद हैं। बड़े बच्चे की उम्र 9 साल है, बहुत ही शरीफ आदमी हैं। इनके बच्चे भी बेचारे बहुत ही बेज़ुबान हैं। जब इनमें से एक रोता है तो बाकी के सब चुपके बैठे सुनते रहते हैं। जब वो रोते रोते थक जाता है तो इनका दूसरा बरखुरदार शुरू हो जाता है। जब वो हारता है तो तीसरे की बारी आती है। रात की ड्यूटी वाले बच्चे ज़रा अलग हैं, उनका सुर ज़रा बारीक है। एक लम्हे के अंदर आपको जगा के उठा के बिठाना दे तो मेरा ज़िम्मा। इन्हीं मिर्ज़ा साहिब के घर पे जब मैं जाता हूँ तो इनके एक एक बच्चे को बुलाकर प्यार करता हूँ। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। कई दफ़ा दिल में आया कि मिर्ज़ा साहिब से कहूँ, हज़रत आपकी इन नगमा सराइयों ने मेरी ज़िंदगी हराम कर दी है। ना दिन को काम कर सकता हूँ, ना रात को सो सकता हूँ। लेकिन ये मैं कहने ही को होता हूँ कि इनका एक बच्चा कमरे में आ जाता है और मिर्ज़ा साहिब एक वालिदाना तबस्सुम से कहते हैं, अख्तर बेटा इनको सलाम करो बेटा, इनका नाम अख्तर है। साहिब बड़ा अच्छा बेटा है, कभी ज़िद नहीं करता, कभी नहीं रोता, कभी माँ को दक नहीं करता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये वही नालायक है जो रात को 2 बजे गला फाड़ कर रोता है। मेरे साथ के घर एक मिर्ज़ा साहिब रहते हैं, खुदा के फजल से 6 बच्चों के वालिद हैं। बड़े बच्चे की उम्र 9 साल है, बहुत ही शरीफ आदमी है। उनके बच्चे भी बेचारे बहुत ही बेज़ुबान हैं। जब उनमें से एक रोता है तो बाकी के सब चुप के बैठे सुनते रहते हैं। जब वो रोते रोते थक जाता है तो दूसरा बरखुरदार शुरू हो जाता है। वो हार जाता है तो तीसरे की बारी आ जाती है। रात की ड्यूटी वाले बच्चे अलग हैं, उनका सुर ज़रा बारीक है। आप उंगलियां चुटकवा कर, सर की खाल में तेल झुसवा कर, कानों में रुई देकर, लिहाफ में सर लपेट कर सोएं। एक लम्हे के अंदर आपको जगा के उठा के बिठा ना दे तो मेरे ज़िम्मे। इन्हीं मिर्ज़ा साहिब के घर पे मैं जब जाता हूँ तो एक एक बच्चे को बुला के प्यार करता हूँ। अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ। कई दफ़ा दिल में आया मिर्ज़ा साहिब से कहूँ, हज़रत आपकी नगमा सराइयों ने मेरी ज़िंदगी हराम कर दी है। ना दिन में काम कर सकता हूँ, ना रात को सो सकता हूँ। लेकिन ये मैं कहने ही को होता हूँ कि उनका एक बच्चा कमरे में आ जाता है और मिर्ज़ा साहिब एक वालदाना तबस्सुम से कहते हैं, अख्तर बेटा इनको सलाम करो बेटा, इनका नाम अख्तर है। साहिब बड़ा अच्छा बेटा है, कभी ज़िद नहीं करता, कभी नहीं रोता, कभी माँ को दक नहीं करता।
मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये वही नालायक है जो रात के 2 बजे गला फाड़ के रोता है। मिर्ज़ा साहिब किबला तो शायद अपने खर्राटों के ज़ोर और शोर में कुछ नहीं सुनते। बदबख्ती हमारी होती है, लेकिन कहता यही हूँ, यहाँ आओ बेटा, और घुटने पर बिठा कर उसका मुंह भी चूमता हूँ। खुदा जाने आजकल के बच्चे किस किस्म के बच्चे हैं। हमें अच्छी तरह याद है कि हम बकर ईद को थोड़ा सा रो लिया करते थे। मेरे साथ वाले घर ना एक मिर्ज़ा साहब रहते हैं। अल्लाह के फजल से 6 बच्चों के वालिद हैं। उनके बड़े बच्चे की उम्र 9 साल है। बहुत शरीफ आदमी है, और उनके बच्चे तो बेचारे बहुत ही बेजुबान है भाई। जब उनमें से एक रोता है ना, तो बाकी के सारे चुप करके बैठ के सुनते रहते हैं। जब वो रोते रोते थक जाता है तो उनका दूसरा बरखुदा शुरू हो जाता है। जब वो भी हार जाता है तो तीसरे की बारी आती है। रात की ड्यूटी वाले बच्चे ना थोड़े अलग हैं। उनका सुर ज़रा बारीक है। आप उंगलियां चटखवा कर, सर की खाल में तेल झुसवा कर, कानों में रुई देकर, लिहाफ में सर लपेट कर सोइए। एक लम्हे के अंदर आपको जगा के उठा के बिठा ना देना तो मेरा जिम्मा। इन्हीं मिर्ज़ा साहब के घर जब मैं जाता हूँ ना, तो इनके एक एक बच्चे को बुलाकर मैं प्यार करता हूँ। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। कई दफ़ा मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं मिर्ज़ा साहब से कहूँ कि हज़रत, आपकी नगमा सराई उन्होंने ना मेरी ज़िंदगी हराम कर दी है। ना दिन को काम कर सकता हूँ, ना रात को सो सकता हूँ। बस यही बात मैं कहने को होता हूँ कि उनका एक बच्चा कमरे में आ जाता है और मिर्ज़ा साहब एक वालिदाना तबस्सुम से कहते हैं कि बेटा इनको सलाम करो बेटा, इनका नाम अख्तर है। साहब बड़ा अच्छा बेटा है, ना कभी जिद करता है, ना रोता है, और अपनी माँ को दक नहीं करता। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वही नालायक है जो रात के 2 बजे गला फाड़ फाड़ के रो रहा होता है। मिर्ज़ा साहब तो किबला अपने खराटों को जोर शोर में कुछ सुन नहीं पाते। बदबख्ती तो हमारी है ना, लेकिन फिर भी यही कहता हूँ कि आओ बेटा, और उसे अपने घुटने में बिठाकर उसका मुंह भी चूमता हूँ। खुदा जाने आजकल के बच्चे पता नहीं किस कसम के बच्चे हैं भाई। मुझे अच्छी तरह याद है, हम बकर ईद पर थोड़ा सा रो लिया करते थे, और कभी कभार कोई मेहमान आ निकले तो नमूने के तौर पर थोड़ी सी जिद कर ली, क्योंकि ऐसे मौके पर जिद बड़ी करामत हुआ करती थी। लेकिन ये कि 24 घंटे मुतवादे रोते रहे, ऐसी मशक हमने कभी बाम ना पहुंचाई थी। मेरे साथ के घर एक मिर्ज़ा साहब रहते हैं। खुदा के फजल से 6 बच्चों के वालिद हैं। बड़े बच्चे की उम्र 9 साल है। बहुत ही शरीफ आदमी है, और उनके बच्चे भी बेचारे बहुत ही बेजुबान हैं। जब उनमें से एक रोना शुरू करता है तो बाकी के सब चुप के बैठे सुनते रहते हैं। जब वो रोते रोते थक जाता है तो उनका दूसरा बरखुरदार शुरू हो जाता है। वो हारता है तो तीसरे की बारी आ जाती है। रात की ड्यूटी वाले बच्चे ज़रा अलग हैं। उनका सुर ज़रा बारीक है। आप उंगलियां चटखवा कर, सर की खाल में तेल झुसवा कर, कानों में रुई देकर, लिहाफ में सर लपेट कर सोइए। एक लम्हे के अंदर आपको जगा के उठा के बिठा ना दें तो मेरा ज़िम्मा। उन्हीं मिर्ज़ा साहब के घर पे जब मैं जाता हूँ, एक एक बच्चे को बुला के प्यार करता हूँ। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। कई दफ़ा दिल में आया कि मिर्ज़ा साहब से कहूँ, हज़रत आपकी इन नगमा सराइयों ने मेरी ज़िंदगी हराम कर दी है। ना दिन को काम कर सकता हूँ, ना रात को सो सकता हूँ। ये मैं कहने ही को आता हूँ कि उनका एक बच्चा कमरे में आ जाता है, और मिर्ज़ा साहब वालिदाना तबस्सुम से कहते हैं, अख्तर बेटा इनको सलाम करो बेटा, इनका नाम अख्तर है। साहिब बहुत अच्छा बेटा है, कभी ज़िद नहीं करता, कभी नहीं रोता, कभी माँ को धक नहीं करता। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये वही नालायक है जो रात के 2 बजे गला फाड़ फाड़ कर रोता है। मेरे साथ के घर ना एक मिर्ज़ा साहब रहते हैं। खुदा के फजल से 6 बच्चों के वालिद हैं। बड़े बच्चे की उम्र 9-10 साल है। बहुत ही शरीफ आदमी है, और उनके बच्चे
وہ تو بیچارے بہت ہی بے زبان ہیں. جب ان میں سے ایک روتا ہے تو باقی کے سب چپکے بیٹھے سنتے رہتے ہیں. وہ روتے روتے تھک جاتا ہے تو ان کا دوسرا برخوردار شروع ہو جاتا ہے. وہ ہار جاتا ہے تو تیسرے کی باری آتی ہے. رات کی ڈیوٹی والے بچے ذرا الگ ہیں, ان کا سر باریک ہے. آپ انگلیاں چٹکوا کر سر کی کھال میں تیل جسوا کر کانوں میں روئی دے کر اور لحاف میں سر لپیٹ کر سوئیے. ایک لمحے کے اندر آپ کو جگا کے اٹھا کے بٹھا نہ دیں تو میرا ذمہ. انہی مرزا صاحب کے گھر میں جب جاتا ہوں تو ایک ایک بچے کو بلا کے پیار بھی کرتا ہوں. اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں. کئی دفعہ دل میں آیا کہ مرزا صاحب سے کہوں, حضرت آپ کی ان نغمہ سرائیوں نے تو میری زندگی عذاب کر دی. بس یہ کہنے ہی کو ہوتا ہوں کہ ان کا ایک بچہ آ جاتا ہے اور مرزا صاحب ایک والدانہ تبسم سے کہتے ہیں, اختر بیٹا ان کو سلام کرو, سلام کرو بیٹا, ان کا نام اختر ہے. صاحب بہت ہی پیارا بچہ ہے, نہ روتا ہے نہ ضد کرتا ہے نہ ماں کو تنگ کرتا ہے. لیکن میں تو اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ وہی نالائق ہے جو رات کو 2 بجے گلا پھاڑ کے روتا ہے.